ایک وقت تھا جب جنات آسمان کی بلندیوں تک جا کر فرشتوں کی باتیں سن لیا کرتے تھے اور پھر وہ یہ خبریں جادوگروں اور نجومیوں تک پہنچ جاتے تھے۔ ہزاروں سال سے ان کا یہی معمول تھا، لیکن پھر اچانک سب کچھ بدل گیا۔ اس رات جب جنات کا ایک گروہ ہمیشہ کی طرح آسمان کی طرف بڑھا تو آگے منظر بالکل مختلف تھا۔ جو ہی وہ آسمان کی حدود کے قریب پہنچے، اچانک آسمان سے آگ کے شعلے برسنے لگے۔ ہزاروں کی تعداد میں نہایت خوفناک شہاب ثاقب ان کا پیچھا کر رہے تھے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ ہمیں پہلے کبھی اس طرح نہیں روکا گیا، واپس لوٹو، یہ راستہ بند کر دیا گیا ہے۔ وہ جان بچا کر فوراً زمین کی طرف پلٹ گئے۔ جب یہ جن اپنی قوم کے پاس پہنچے تو پورا قبیلہ جمع ہو گیا۔ سب کے چہروں پر ایک ہی سوال تھا، کیا ہوا؟ تم آسمان سے خالی ہاتھ کیوں لوٹے؟ ہمارے اور آسمان کی خبروں کے درمیان رکاوٹ ڈال دی گئی ہے اور ہم پر آگ کے شعلے برسائے جا رہے ہیں۔ قوم میں سناٹا چھا گیا۔ پھر ایک بزرگ جن بولا، یہ معمولی بات نہیں، ضرور زمین یا آسمان میں کوئی بہت بڑا واقعہ پیش آیا ہے۔ جنات کے سرداروں نے آپس میں مشورہ کیا اور آخرکار یہ فیصلہ ہوا، مشرق سے مغرب تک پھیل جاؤ، زمین کے ہر کونے میں جاؤ اور معلوم کرو کہ آخر وہ کون سا واقعہ ہے جس نے آسمان کے دروازے بند کر دیے۔ یہ حکم ملتے ہی جنات کے گروہ زمین کے کونے کونے میں پھیل گئے۔ انہی جنات کا ایک گروہ عرب کے ریگستانوں کی طرف بھی جا نکلا۔ وہ رات کے آخری پہر مکہ مکرمہ کے قریب وادی نخلہ سے گزر رہا تھا۔ اس ویرانے میں دور دور تک کوئی نظر نہیں آ رہا تھا کہ اچانک ان کے کانوں میں ایک آواز پڑی، الحمدللہ رب العالمین۔ انتہائی خوبصورت اور دل نشین آواز۔ سب جن اپنی جگہ رک گئے۔ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ یہ کیسی آواز ہے؟ یہ کون پڑھ رہا ہے؟ چلو چلو جلدی چلو۔ انہوں نے جب آواز کا پیچھا کیا تو دیکھا کہ چند لوگ ہاتھ باندھے قطار میں کھڑے ہیں اور ان سب سے آگے موجود ایک شخص وہ کلام پڑھ رہا تھا، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ جنات حیرت سے یہ منظر دیکھنے لگے۔ وہ آواز کسی اور کی نہیں بلکہ ہمارے پیارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ حضور فجر کی نماز میں قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے اور آپ کے ساتھ صحابہ کرام موجود تھے۔ اصل میں وادی نخلہ سے تھوڑا آگے عکاظ کے نام سے عرب کا ایک مشہور بازار ہوا کرتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ اسی عکاظ کے بازار کی طرف جا رہے تھے کہ رات ہو گئی تو آپ نے وادی نخلہ میں قیام کر لیا اور اب آپ صحابہ کے ساتھ فجر کی جماعت ادا کر رہے تھے۔ جنات حیرت سے قرآن سن رہے تھے، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ ہر آیت کے ساتھ ان کے دل بدلتے جا رہے تھے۔ وہ کلام روح کے اندر تک اتر رہا تھا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ان کے دل گواہی دے رہے تھے کہ یہی حق ہے۔ انہیں اندازہ ہو چکا تھا کہ آسمان بند ہونے کی اصل وجہ یہی کلام تھا۔ قرآن سننے کے فوراً بعد وہ جن اپنی قوم کی طرف واپس لوٹ گئے۔ بتاؤ کیا پتا چلا؟ ہم نے وہ چیز پالی ہے جس کی وجہ سے آسمان بند ہوا۔ ہم نے ایک عجیب کلام سنا ہے جو سیدھا رستہ بتاتا ہے۔ ہم اس پر ایمان لاتے ہیں اور اب ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ اور یوں وہ سب کے سب جن مسلمان ہو گئے۔ دوسری طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حیرت انگیز واقعے کا ابھی تک نہیں پتا تھا، مگر پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پر سورہ جن کی یہ آیات نازل فرمائیں، قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا۔ اے پیغمبر کہہ دیجئے میرے پاس وحی آئی ہے کہ جنات کی ایک جماعت نے قرآن غور سے سنا ہے اور اپنی قوم سے جا کر کہا ہے کہ ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے، يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَن
नुश्रिक बिरब्बिना अहदा, जो राह रास्त की तरफ रहनुमाई करता है, इसलिए हम उस पर ईमान ले आए हैं और अब हम अपने परवरदिगार के साथ किसी को इबादत में हरगिज़ शरीक नहीं मानेंगे। एक ज़माना था जब अरब के लोग रेगिस्तानों के लंबे और ख़तरनाक सफ़र किया करते थे। जब सूरज गुरूब हो जाता और काफ़िले को किसी सुनसान वादी या वीरान सहरा में रात गुजारनी पड़ती, तो काफ़िले का सरदार ऊंची आवाज़ में कहता, है इस वादी के सरदार जिन, हम तुम्हारी पनाह मांगते हैं, अपने शर से और अपने साथियों के शर से हमें बचाओ। जिन्नात जब ये देखते कि इंसान उनसे खौफज़दा हैं और उनकी पनाह मांग रहे हैं, तो उनके दिल में और गुरूर पैदा हो जाता, वो मजीद सरकश हो जाते। देखो, इंसान हमसे डरते हैं, वो हमारी पनाह के मोहताज हैं, हम उनसे ज्यादा ताकतवर हैं। इसी हकीकत को अल्लाह ताला ने सूरतुल जिन में बयान फरमाया कि इंसानों का ये अमल जिन्नात को और ज्यादा सरकश बना रहा था, मगर अब हालात बदल चुके थे। कुरान सुनने के बाद जिन्नात को अंदाजा हो चुका था कि इंसान का मकाम जिन्नात से बहुत बुलंद है, क्योंकि इंसानों में अल्लाह के आखिरी नबी मौजूद हैं और उन्हीं पर अल्लाह का कलाम नाजिल हो रहा है। अब जिन्नात के दिल में एक और ख्वाहिश पैदा हुई, उस हस्ती से मुलाकात की ख्वाहिश जिस पर यह कलाम नाजिल हुआ था। ये एक ऐसी रात थी जिसमें छुपी हुई दुनिया का पर्दा उठने वाला था। उस रात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशा की नमाज अदा फरमाई और नमाज के बाद आपने इरशाद फरमाया, मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं जिन्नात को कुरान सुनाऊं, तुम में से कौन मेरे साथ चलेगा? पूरी मजलिस में खामोशी छा गई। आपने दूसरी बार पूछा, फिर तीसरी बार, मगर कोई जवाब ना आया। फिर आपने हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का हाथ अपने हाथ में लिया और उन्हें साथ लेकर मक्का की पथरीली जमीन की तरफ चल पड़े। रात गहरी हो चुकी थी, चारों तरफ सन्नाटा था। कुछ फासले पर जाकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुक गए। अब आपने हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद को एक जगह बिठाया और मिट्टी में उनके चारों तरफ लकीरें खींच दी। फिर निहायत संजीदगी से फरमाया, इन लकीरों से हरगिज़ बाहर ना निकलना। तुम्हारे करीब बहुत से लोग आएंगे, लेकिन ना तुम उनसे बात करना और ना वो तुमसे बात करेंगे। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खामोशी से दायरे में बैठ गए। उनका दिल तेजी से धड़क रहा था। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे तशरीफ ले गए। रात मजीद गहरी होती चली गई। अचानक अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने महसूस किया कि कोई अजीब व गरीब मखलूक उनके करीब आ रही है। वो बहुत ऊंचे लंबे थे, मगर ना उनके चेहरे साफ दिखाई दे रहे थे और ना ही उनके लिबास। वो हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद के करीब आकर लकीरों के पास रुक जाते और फिर कुछ कहे बगैर खामोशी से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ बढ़ जाते। अब्दुल्ला बिन मसूद का दिल खौफ से कांप रहा था। रात भर जिन्नात आते रहे और हुजूर के पास हाजिर होते रहे। जब रात खत्म होने के करीब हो गई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस तशरीफ ले आए। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद अभी तक दायरे के अंदर बैठे हुए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं सारी रात जागता ही रहा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दायरे के अंदर दाखिल हुए और अब्दुल्ला बिन मसूद के पास लेटकर सो गए। यूं ही हुजूर की नींद गहरी हुई, एक और अजीब व गरीब मखलूक हाजिर हो गई। मगर ये मखलूक पहले की तरह खौफनाक नहीं थी, बल्कि ये बहुत नूरानी हस्तियां थीं। उनके कपड़े बिल्कुल सफेद थे और वो लोग इंतहाई खूबसूरत थे। उनमें से कुछ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सरहाने बैठ गए और कुछ आपके पांव की जानिब। फिर वो आपस में बातें करने लगे। अब्दुल्ला बिन मसूद खामोशी से सुनने लगे। उनमें से एक ने कहा, हमने किसी बंदे को ऐसा नहीं देखा जिसे इतना मुकाम दिया गया हो जितना इस नबी को दिया गया है। दूसरा बोला, इनकी आंखें सोती हैं लेकिन इनका दिल बेदार रहता है। फिर उन्होंने कहा, इनकी मिसाल ऐसी है जैसे एक सरदार ने एक महल बनाया, फिर उसमें एक दस्तरखान बिछाया और लोगों को अपनी दावत पर बुलाया। जिसने दावत कबूल की उसका फ़ायदा हो गया और जिसने दावत कबूल ना की वो सरदार उसे सजा देगा। ये बात कहकर वो सब उठे और चले गए। उनके जाते ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेतार हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमने सुना उन्होंने क्या कहा और क्या तुम जानते हो ये कौन लोग थे? अब्दुल्ला बिन मसूद ने अर्ज किया,
अल्लाह और उसके रसूल ज्यादा बेहतर जानते हैं। आपने फरमाया वो फरिश्ते थे और उन्होंने जो मिसाल बयान की वो खुदाए रहमान की थी। अल्लाह ताला ने जन्नत बनाई और अपने बंदों को जन्नत की दावत दी। जिसने दावत कबूल की वो जन्नत में दाखिल हो गया और जिसने दावत कबूल न की उसे अजाब में डाल दिया जाएगा। ऐसी ही एक और रात थी जिसके बारे में सहाबाई कराम फरमाते हैं कि ये उनकी जिंदगी की खौफनाक तरीन रात थी। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक रात हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे कि अचानक हमें एहसास हुआ हुजूर हमारे दरमियान मौजूद नहीं है। हम घबरा गए और फौरन आपकी तलाश शुरू कर दी। वादियों में ढूंढा, घाटियों और दरों में देखा, लेकिन हुजूर कहीं नजर न आए। हमारे दिलों में तरह तरह के ख्याल आने लगे। कहीं हजूर को उठा तो नहीं लिया गया, कहीं किसी दुश्मन ने नुकसान तो नहीं पहुंचा दिया। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद फरमाते हैं हमने वो रात शदीद बेचैनी में गुजारी, ऐसी रात जो शायद ही किसी कौम ने कभी गुजारी हो। जब सुबह हुई तो अचानक हमने देखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा की तरफ से तशरीफ ला रहे हैं। हम दौड़कर करीब गए और अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको सारी रात तलाश किया और बहुत खौफ के आलम में रात गुजारी। तब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हकीकत बयान फरमाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे पास जिन्नात की तरफ से एक पैगाम लाने वाला आया था और मैं उसके साथ किया था। मैंने जिन्नात के सामने कुरान की तिलावत की। फिर हुजूर हमें अपने साथ लेकर गए और फरमाया, ये देखो, ये उनके कदमों के निशान हैं और ये उनकी आंख के निशानात हैं। सहाबा ने जमीन पर वो निशान अपनी आंखों से देखे। रिवायात में आता है कि जिन्नात ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कई मुलाकातें की और आपसे दीन सीखा, जिससे पता चलता है कि कुरान सिर्फ इंसानों के लिए नहीं बल्कि जिन्नात के लिए भी हिदायत है और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ इंसानों के नहीं बल्कि जिन्नात के भी रसूल हैं। वीडियो मुकम्मल देखने का शुक्रिया। अगर आपके साथ भी कभी जिन्नात से मुताल्लिक कोई वाकया पेश आया है तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए।